Hello everyone and welcome to Biz Analytics, where business meets analytics. Brought to you by Club Datalogics, the analytical club of IBS Mumbai. Datalogics has always been the forefront of promoting analytical thinking, data-driven insights, and innovation among students. As part of our continuous efforts to create engaging and informative learning experiences, we are proud to introduce a new series, a new initiative that is taken by the Datalogics team, which is the podcast series. Through this initiative, we aim to bring forward conversations with industry experts, professionals who have made significant contributions in the fields of analytics and business intelligence. I'm your host, Janvi Shah, and today we begin our very first episode with someone who has truly lived the data-driven journey, Mr. Shashank Agrawal, the functional lead at Tejas Support Services Private Limited, Microsoft Certified Power BI expert, Excel automation specialist, and CA interprofessional who bridges analytics and finance beautifully. Welcome, Shashank sir. It's a pleasure to have you. Thank you. So, before further ado, I'll begin with the podcast. So, before we dive deeper, we'd love to know about your journey. Every career shift has a story behind it. So, could you share how your interest in analytics began, especially coming from a chartered accountancy background? I was so in midst of 10th standard or 9th standard, lower average score guy था मैं, तो उतना पढ़ाई में था अच्छा था नहीं, but I was very much fantasizing with science और maths. मेरे को काफ़ी अच्छे नंबर आए थे. Then I tried to pursue in college. तो मेरे relatives में भी बहुत सारे chartered accountant people थे जो said कि maths अच्छा है तो let's go for chartered accountant things. तो मैं chartered accountant pursue किया. The CPT cleared हुआ first attempt में. Then I tried to give the inter multiple attempts but हुआ नहीं. Then I get the found कि चलो let's try to corporate, एक बार जॉब करते हैं, understand करते क्या. वहाँ पे I get the introduce of Excel actually. फॉर्मूला समझा क्या होता है and get to know कि कैसे डेटा को देखा जाता है, कैसे लोग समझते हैं, क्या करते हैं. There why I get the enthusiasm कि यार Excel में अगर कुछ करना है तो कुछ कर लेते I think. Then जब मैं चार्टर्ड अकाउंटेंसी में नॉर्मल तरीके से काम कर रहा था वहाँ पे, तब मुझे समझा कि ओके ये एक्सेल मेरे हिसाब से जब मैं सीए बन जाऊँगा तब ये बहुत एफिशिएंटली मैं और उस पर काम कर सकता हूँ. देन आई अगेन परस्यू फॉर चार्टर्ड अकाउंटेंसी. मेरा इंटर क्लियर हुआ फर्स्ट टाइम में. देन आई ट्राई टू फाइनल बट नहीं हुआ. बट नाउ अनफॉर्चुनेटली मतलब सीए पर्सपेक्टिव जितना काम कर रहा हूँ उस पर्सपेक्टिव से मैंने एक्सेल को बहुत अच्छा बेस बनाया और मैं अपने डेटा सेट पर्सपेक्टिव एनालिस्ट के रोल पे चला गया. दैट्स व्हाट मैन. That's exactly how I related also with my CA inter journey. So, was there a particular project or defining moment when you realized that yes, analytics can genuinely transform business outcomes? So, एक कंपनी में मैं काम कर रहा था where we need to understand the things कि इन्वेंट्री जो हमारे पास होती है उसको कैसे मैनेज किया जा सकता है. सो जब वो डेटा सेट आया तब आई अंडरस्टूड कि ठीक है इन्वेंट्री है, रखी होगी, बेका होगा, जो भी किया होगा, सेल परचेज जो भी कर सकते हैं उसके बेसिस पे क्या सोच सकते हैं, क्या कर सकते हैं उसमें. देन आई फाउंड विद जो मुझे समझा रहे थे सीएफओ कि क्या उसका विजन है, क्या होना चाहिए वो बनाते वक्त. देन आई अंडरस्टूड कि ओके इन्वेंट्री में भी इतनी चीज़ें होती है जहाँ पे आप नहीं समझ सकते हो. सो फॉर एग्जाम्पल ये इन्वेंट्री कितने टाइम से पड़ी हुई है, क्यों ये नहीं बिक रहा है, क्या उसका प्राइस पॉइंट है, क्या कस्टमर को ये प्राइस पॉइंट जिस लोकेशन पे हम बेच रहे हैं उस प्राइस पॉइंट का कस्टमर्स वहाँ पे अवेलेबल है कि नहीं. फॉर एग्जाम्पल इफ आई गिव द एग्जाम्पल ऑफ धारावी इन मुंबई ऑल्सो देयर आर मल्टीपल लोकेशन. सो भाईंदर, विरार, बांद्रा, अगर आप सपोज कोई ज्वेलरी बेच रहे हो और वो अगर सपोज मोर देन 500 रुपीज या मोर देन 1000 रुपीज की है तो अगर वही सेम ज्वेलरी अगर आप विरार में बेचोगे तो डेफिनेटली इट वुड नॉट बी. तो यहाँ पे लोकेशन वाइज का बहुत अच्छा इम्पैक्ट आया. तो समझ में आया कि ओके ये लोकेशन में शायद ये प्राइस पॉइंट का प्रोडक्ट नहीं बिकता है या बिकता है तो इतना स्टॉक नहीं होना चाहिए यहाँ पे. वो मैनेजमेंट करना इज समथिंग विच आई फील कि ओके दिस इज द थिंग आई थिंक बिजनेस डिसीजंस में ये सब चीजें हेल्प करती है. So what are the other common mistakes that analysts usually do coming from this background, finance background? Right, so they directly start interacting with the data. I think you should not start interacting with the data. You should understand the thing, the one who is making that data. वो डेटा आ कैसे रहा है, पुल कैसे हो रहा है. जो बंदा आपको बोल रहा है कि इस पे एनालाइज करना है, आपको ये समझना पड़ेगा कि उसका विजन क्या है. देयर वुड बी अ थॉट प्रोसेस कि उसका आउटकम क्या निकाला. एक डेटा से देयर वुड बी अ मल्टीपल आउटकम. सो फॉर एग्जांपल इफ आई टॉक अबाउट सेल्स थिंग,
अगर कोई सेल्स पर्सन है उसको वो सेल्स फिगर इसके लिए देखना है बिकॉज मेरे को कमीशन बोनस कितना मिलेगा। सीएफओ का थॉट प्रोसेस क्या रहेगा? सीएफओ का थॉट प्रोसेस ये रहेगा कि ये जो सेल्स बढ़ रहा है मैं कंपनी को नेक्स्ट लेवल पे कहां पे लेके जा सकता हूं। अगर कोई एडमिन पर्सपेक्टिव है वो क्या देखेगा कि अच्छा ये सेल्स पे इतना कॉस्टिंग लग रहा है, मैं कॉस्टिंग कैसे कम करूं। सो सबका माइंडसेट, सबका थॉट प्रोसेस बहुत अलग तरीके से चलता है। यू नीड टू मेक श्योर कि आप जिसके लिए रिपोर्ट बना रहे हो वो बंदा क्या देखना चाहता है। अगर वो इजीली तरीके से देखना चाहता है सेल्स पर्सपेक्टिव, ट्राई टू गिव हिम सेल एनालिसिस, तो ही विल बी हैप्पी, ओके ये मैं इस पे डिसीजन ले सकता हूं। अगर आप विजन पर्सपेक्टिव किसी और के लिए कुछ अलग रिपोर्ट बना रहे हो तो वो अलग है। सो डायरेक्टली डोंट जंप इनटू द डेटा, ट्राई टू अंडरस्टैंड द विजन, हैव अ इंटरेक्शन, मल्टीपल पीपल से मिलो जो वो पर्सपेक्टिव में काम कर रहे हैं, अंडरस्टैंड द फ्लॉज, क्या क्या प्रॉब्लम स्टेटमेंट है उसको टेक केयर करो, देन यू नीड टू विल एबल टू रिजॉल्व द प्रॉब्लम्स। Yes, totally agree. So, as you know, that many of our listeners are students or early professionals. So, if someone wants to get started in analytics today, so from where should they begin their journey? इसमें एक टैबू है which I will definitely want to highlight. There would be a multiple courses online जो आपको बताएंगे कि आपको इतना जॉब लग जाएगा, इतना लॉग लग जाएगा, मेरा कोर्स करिए इतना जॉब लग जाएगा। It's simply a fake thing and I think it is a scam. Don't go out into it. Trust me. जब आपको कोई बोलता है कि जॉब लग जाएगा, इतना लग जाएगा, उतना लग जाएगा, जैसे आपने एंट्री की वहां पे कुछ नहीं मिलने वाला, ना आपको सर्विस मिलते हैं ना कुछ मिलता है। हैव अ सेल्फ पेस्ड लर्नर, ट्राई टू एक्सप्लोर मल्टीपल थिंग्स ऑन यूट्यूब। आप लर्न करो, देखो क्या पसंद आ रहा है, आप एक्सेल में अंडरस्टैंड करो कि एक्सेल ये चीज मुझे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर आपको उसमें फिर भी एंथुसियाज्म आ रहा है, देन इफ यू वांट टू टेक अ सर्टिफाइड कोर्स और टू अंडरस्टैंड कि ठीक है एज अ डिग्री मुझे चाहिए कुछ, तो आप सर्टिफाइड करो, बट डोंट रिलाई ऑन दैट पर्टिकुलर कोर्स बिकॉज कोर्स विल गिव यू नथिंग, नॉट एट ऑल। That's a very practical advice. How does understanding the business help a data analyst make a bigger impact? So, इसमें मैं आपको एक्चुअली तीन चीज समझाता हूँ, ठीक है। दिस क्वेश्चन हैव थ्री थिंग्स जो मल्टीपल लोगों को ये दिमाग में चीजें रिजॉल्व करेगा। वन इज डेटा एनालिस्ट क्या होता है, वन इज बिजनेस एनालिस्ट क्या होता है, वन इज डेटा इंजीनियरिंग पर्सपेक्टिव क्या होता है। सो डेटा एनालिस्ट क्या करेगा, डेटा आया उस पर काम करेगा और वो दे देगा, ठीक है। नाउ बिजनेस एनालिस्ट क्या करेगा, बिजनेस एनालिस्ट वो पर्टिकुलर डेटा को देखेगा, करना क्या है उसका, क्या ये डेटा का इंसाइट डिसीजन मेकिंग में मैं यूज कर सकता हूँ, क्या मैं इससे बिजनेस बना सकता हूँ, क्या मैं इसको ऐसी चीजों से एक्सट्रैक्ट करके मैं मेरे बिजनेस के फंडामेंटल्स बदल सकता हूँ। डेटा इंजीनियरिंग क्या करेगा, डेटा इंजीनियरिंग वुड बी हेल्पिंग विद योर डेटा कि अगर ये सिस्टम से डेटा आ रहा है तो क्या मैं ये कॉलम्स ऐड करके मैं मेरे सिस्टम के थ्रू मैं ऐड करूँ नहीं करूँ। सो ऑल थ्री थिंग्स आर एक्चुअली डिफरेंट, बट बिजनेस एनालिस्ट एक्चुअली में जब वो डेटा को देखेगा, डेटा को अंडरस्टैंड करेगा, वो उसका जो आउटकम बहुत अलग लेवल पे होगा। बट डेटा एनालिस्ट इज एक्चुअली अ फर्स्ट हेड, देन अ सेकंड लैडर वुड बी अ बिजनेस एनालिस्ट। दैट्स गुड केस। Okay. In your opinion, can a background in business education like an MBA enhance an aspiring analyst's effectiveness and career prospects? Yes, because MBA चलो MBA would be done in multiple fields. फिनेंस होता है, मार्केटिंग होता है। फिनेंस में चलो एनालिस्ट पर्सपेक्टिव काम भी आता है बिकॉज उसमें ROI कैलकुलेशन, बैलेंस शीट, P&L, ट्रायल बैलेंस, बहुत सारी चीज होती है। लेट्स टॉक अबाउट द मार्केटिंग। मार्केटिंग में क्या होता है, पीपल जनरली गिव द बजट कि इतना बजट है, आप इतना स्पेंड करो, इतना सेल्स आना चाहिए, इतना रेवेन्यू आना चाहिए, दैट वुड माई केस। So over there, marketing people, how analysts would be able to help them to understand कि ठीक है इतना मेरा बजट था, इतना मेरा एक्चुअल है, उन दोनों को कंपैरिजन करके मेरा कितना सरप्लस होता है, कितना डेफिशिएट होता है, लास्ट ईयर से कंपैरिजन करके कि एक्चुअल के थ्रू कितना डेफिशिएट होगा, कितना सरप्लस होगा, उसमें रेवेन्यू पर्सपेक्टिव आइडेंटिफाई करके कि आपने कितना लीड जनरेट किया, कितने लीड जनरेट से कितना पैसा आ रहा है, एग्जिस्टिंग वाले भी पैसा दे रहे, न्यू वाले भी पैसा दे रहे, उसमें मल्टीपल बाइफरकेशंस हो सकता है। सो देयर इज अ मल्टीपल की पॉइंट्स और मल्टीपल पॉइंट्स वेयर यू कैन टेक केयर इन दैट, एंड उससे जो आउटकम निकलेगा दैट विल एनहांस योर मार्केटिंग कि आप कैसे कर सकते हो। सो मार्केटिंग में भी देयर आर मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स, आपको ये चूज करना चाहिए कि वो प्लेटफॉर्म, वो मीडिया हम कौन से लोकेशन पे टेक केयर करें। सो एग्जांपल सपोज इफ यू आर टारगेटिंग रूरल एरियाज और अर्बन एरियाज, आपको ये देखना आपके प्रोडक्ट का रीच अर्बन एरियाज में है कि नहीं है। अगर अर्बन एरियाज में है देन उधर मार्केटिंग का स्ट्रैटेजी बहुत अलग तरीके से चलेगा, वहां पे रेडियो, टीवीज ऐसा चलेगा। अभी तो फोन सबके पास आ गया है, डिजिटलाइजेशन हो गया है, बट होर्डिंग अभी आजकल कोई दिखता नहीं है इतना। तो आपको वो पर्सपेक्टिव से सोचना पड़ेगा कि मैं अगर ये एक्सपेंडिचर, ये टाइप ऑफ मीडिया में खर्चा कर रहा हूँ, क्या मेरा आउटकम उतना आ रहा है कि नहीं आ रहा है। That's what they think. I think MBA should pursue for the analyst to understand कि कैसे उनका बजट, कैसे उनका एक्चुअल्स एक्चुअली मैच कर सकते हैं। And how operations field, a student from an operations field will link their analytics journey? So
ऑपरेशंस एक्चुअली जो बिजनेस प्रोसेस होता है उसके थ्रू एनालाइज करना. सो फॉर एग्जांपल अगर आई हैव बीन वर्किंग विद एन एडवर्टाइजिंग कंपनी. over there is a multiple website which they have created, and based on that उनको ये समझ में आता है कि ओके ये वेबसाइट से इतना प्लेटफॉर्म या इतना लीड जनरेट हो रहा है, ये प्लेटफॉर्म से इतना लीड जनरेट हो रहा है, तो क्या वो लीड कितना कन्वर्ट हो रहा है, दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट. कितना लीड रिटेंशन हो रहा है, दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट. सो वो चीज़ भी ऑपरेशन में डेफिनेटली हेल्प करेगी कि आपको एक स्ट्रक्चर वे में अंडरस्टैंडिंग करना कि कैसे चल रहा है प्रोसेस. ऐसा. Thank you so much, sir, for spending your valuable time with us and giving such wonderful insights. And we will meet in the next episode. Stay tuned.